Hello and good morning, friends. So, this is good morning for me basically because I'm now shooting this video in the morning. Now, due to day to day problem, I'm not able to come live here onwards because some regular duties I have to do at times. So, I'm not getting right time, means the time which we have fixed 3 p.m. Okay, so let it be. You will get your dose every day at 3 p.m. So today's session it is regarding next chapter, that is strategies for enhancement in food production. So let us start this one. Okay, friends, so let us start this session. Now, before we start this session, you must have the news that is regarding the postponing of the exam, NEET. Okay, so NEET is postponed. I hope everybody has the news already because it is already 24 hour late news for everybody. ठीक है, तो अभी आपके पास कम से कम 70 दिन है, 70 days you have got. Okay, so you can prepare as much you want. Now some students which are already repeater, means already repeating for the NEET, it could be somewhat harassing for them, but please take it positively. इसे आपको बहुत ही पॉजिटिवली लेना है. देन एंड देन ओनली इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन गो फॉर इट इन अ फुल फ्लेज मैनर and you can score flying colors. So this is my kind request, not to think anything else than exam. Now you have got 70 days. Whatever flaws, whatever drawbacks you found in your preparation, you can rectify them right now. This is the right time to rectify all your preparation in last 2 years. Okay, whichever the chapter, whatever the topic and MCQ and all that, you can rectify each and everything, each and every mistake you have committed, you can rectify it, you can correct it. Okay, so 70 days is good enough time. So within few episodes we'll wind up this PYQ session and then we plan for something else. You can suggest me in our comment section. Now here onwards, all recordings you are going to see, so comment section is open for all of you. Means live chat will not work. Okay, so आप comment section में आप बोल सकते हो आपके सुझाव, that how to design further plan. I have some different ideas, but I would like to see what you want to say. Okay, so without wasting any more time, let us switch on to the chapter strategies for enhancement in the food production. So here is the first question. It is homozygous pure line in cattle can be obtained by. होमोजाइगोसिटी का मतलब जेनेटिक्स में भी हमने देखा था. होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या होता है? प्योर लाइन्स होता है, isn't it? तो अब होमोजाइगोसिटी का मतलब प्योर लाइन है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है. अगर प्योर लाइन या होमोजाइगोसिटी करवानी है तो क्या ज़रूरी पड़ेगा? तो कैटल में होमोजाइगोसिटी या फिर प्योर लाइन कैसे ऑब्टेन की जा सकती है? मीटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, और लास्ट ऑप्शन है मीटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट होमोजाइगोसिटी या फिर प्योरिटी का मतलब होता है कि एक ही प्योर लाइन के अंदर की मीटिंग. अब उसमें खासकर अगर इंडिविजुअल क्लोजली रिलेटेड रहते हैं विद इन 4 to 5 क्या कह सकते हैं उसे, जनरेशन, 4 से 5 जनरेशन के भीतर अगर उनके पेरेंट्स सेम रहते हैं तो वी कैन से दैट दे आर रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड. तो ऐसे में अगर हम मीटिंग करवाते हैं तो क्या होगा कि उनके जो भी एलील्स है, चाहे वो डोमिनेंट हो या चाहे रिसेसिव हो, वो क्या हो जाएंगे? इकट्ठा आ जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज होमोजाइगोसिटी और प्योरिटी. It is same question or same content which is practiced by the Mendel to obtain the pure line. We refer it as an inbreeding or selfing. Okay, तो वही बात है यहाँ पर. So the right answer is option D. Next question. Outbreeding is an important strategy of animal husbandry because. अब आउटब्रीडिंग एक important strategy मानी जाती है. अब इसका रीज़न आप समझ लो कि इनब्रीडिंग
या सेल्फिंग जो अभी हमने जिसकी डिस्कशन की, वो अगर कंटिन्यूसली करते जाते हैं हम किसी एनिमल में, कैटल में, तो हम क्या पाते हैं, आफ्टर फ्यू जनरेशन देयर इज डिक्रीज इन द विगर, उसका जो विगर होता है, मिल्क प्रोडक्शन आप कह सकते हो, फर्टिलिटी कह सकते हो, इनमें जो है डिप्रेशन आने लगता है, वो कम होने लगता है मिल्क प्रोडक्शन या फिर उसकी फर्टिलिटी। तो उसे अगर वापस से रिस्टोर करना है, वापस से उसे नॉर्मल करवाना है, तो वहाँ पर आउटब्रीडिंग की जो चीज़ है वो काम में आ सकती है, राइट। सो मतलब सिर्फ एक जनरेशन के लिए। तो अभी अब ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन्स ऑफ एन एनिमल। अब प्योर लाइन हमने देखा, आउटब्रीडिंग से कैसे क्या हो सकती है, तो ए तो नहीं बनेगा। इट इज़ यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इट सिम्स ट्रू। आउटब्रीडिंग से एक आउट क्रॉस अगर हम कर देते हैं सिर्फ एक जनरेशन के लिए, तो जो भी डिप्रेशन आया है वो एलिमिनेट करवा सकते हैं, सिम्स टू बी ट्रू। एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, ठीक है। अब इनब्रीडिंग से ये चीज़ की जा सकती है कि अगर रिसेसिव अलील्स है और वो हार्मफुल है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटब्रीडिंग इनब्रीडिंग में वो इकट्ठा आते थे। इनब्रीडिंग में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की वो प्यूरिटी, होमोजाइगोसिटी बढ़ने वाली है, तो ये इनब्रीडिंग के लिए ठीक है, ना कि आउटब्रीडिंग के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, फिर एक बार एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा आना, ठीक है। तो ये फिर एक बार क्या होगा, जो भी सुपेरियर हो इंफीरियर हो, इकट्ठा आना, एक्यूमुलेट होना, मतलब होमोजाइगोसिटी की बात हो रही है, तो फिर एक बार ये भी गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज सेकंड वन, यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a system of rotating crop with legumes or grass pasture to improve soil structure and fertility is called. So you need to understand here what is this legume or grass pasture, मतलब यहाँ पर क्रॉप रोटेशन की बात हो रही है। You need to understand this term. This term basically comes from agriculture, so it is called as crop rotation. Some of you who has crop science as a bifocal course, they can understand this one very well. Crop rotation भी इसे कहा जाता है, और दूसरा इसका एक वर्ड है lay farming. So A is the right answer, but you need to understand what is it exactly. See, many a times when we grow some exhaustive crop in the sense which require too much of nutrients, plant nutrients, so they absorb too much of plant nutrient from the soil and then soil get exhausted, ठीक है। So such a time we need to grow some other crop in next season on the same piece of land so that fertility of soil can be restored. Okay, so this is crop rotation, or also called as lay farming. So it is rotating crop. Now this rotation doesn't mean physically, please ये समझना होगा आपको। ये रोटेशन मतलब हाथ में लेकर उसे घुमाना नहीं है। क्या करना है, तो लेग्यूम या ग्रास पास्चर के साथ अगर उसको हम अल्टरनेट सोइंग करते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे, तो क्या हो जाएगा, लेग्यूम जो होते हैं उसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करवा सकते हैं, नाइट्रोजन फिर सॉइल में ऐड करवा सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड ऑफ दैट सॉइल एज वेल एज स्ट्रक्चर। ओके, सो ले फार्मिंग इज द राइट वन। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑप्शन? कंटूर फार्मिंग क्या है? कंटूर फार्मिंग मतलब स्लोपी लैंड पर, जैसे ऐसी इस तरीके की अगर स्लोपी लैंड है, पूरी पहाड़ों वाली जमीन है, तो इस पर अगर इस तरीके से ऐसे स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग की जाती है, यू माइट हैव सीन, ऐसे स्टेप में होती है अकॉर्डिंग टू द स्लोप। ओके, बट परपेंडिकुलर टू द स्लोप, मतलब अगर इस दिशा में स्लोप है तो उसे 90 डिग्री में ही आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज कंटूर फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग क्या है? स्ट्रिप फार्मिंग है अगर सपोज एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रिप जो होती है एक क्रॉप की, ठीक है, माने जैसे कोई भी क्रॉप आप पकड़ सकते हैं, कॉटन या सोयाबीन ले सकते हैं, या फिर एक कॉटन का लाइन एक सोयाबीन का, या फिर 2 कॉटन एक सोयाबीन, 2 कॉटन के लाइन एक सोयाबीन की लाइन, इस तरीके से। तो इसे क्या कहते हैं? स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जूम कल्टीवेशन, यू मस्ट नो दिस, मतलब एक जगह की पूरी फर्टिलिटी 4-6 साल यूज करने के बाद उसे फिर जंगल ग्रो करने के लिए उसे वैसे का वैसा छोड़ देना, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहले पाया जाता था, जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसे कहा जाता है। सो राइट हियर it is lay farming, that is crop rotation. Next one, which part of the tobacco plant is infected by Melidogine incognita? So what is this Melidogine incognita? It is for RNA interference, isn't it? So root is the area where this Melidogine incognita infect, right? जिन लोगों ने अच्छा से चैप्टर पढ़ा है वो बहुत आसानी से सवालों का जवाब दे सकते हैं। Next, in plant breeding program, the entire collection of plants or seeds having all the diverse alleles for all genes in a given crop is called. Now this is very straightforward. It is germ plasm collection. ठीक है, क्या होता है germ plasm? ठीक है, germ plasm में क्या होता है कि बेसिकली जितने पॉसिबल है सभी स्पीसीज का हमें कुछ ना कुछ
प्रोपेगेटिंग मटेरियल इकट्ठा करवाना है। प्रोपेगेशन में यूज़ किया जा सकता है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, वॉट एवर सीड। ओके, फ्लावर फ्रूट तो नहीं बोल सकते लेकिन सीड बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड होता है तो रूट या स्टेम जो भी हिस्सा है उसका। तो ऐसे अगर सपोज हम कॉटन की कर रहे हैं तो कॉटन के जितने स्पीशीज, जितने वैरायटीज पाए जाते हैं सभी के सीड हमें इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, कॉटन का जर्म प्लाज्म बनेगा, ठीक है। तो जैसे ये मतलब सीड बैंक के जैसे ये जर्म प्लाज्म बैंक होते हैं जहाँ पर हर एक स्पीशीज की हर एक वैरायटी हम पा सकते हैं। इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल अलील्स। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज के पूरे अलील्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम आगे के एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म प्लाज्म। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, green revolution in India occurred during, so right answer is 1960s, isn't it? Next one, Jaya and Ratna developed for green revolution in India are the varieties of, very simple, Jaya, Ratna, these are the varieties of rice. Okay, next, Himgiri developed by hybridization and selection for disease resistance against rust pathogen is a variety of, yes, Himgiri किस चीज की variety है, wheat की variety. Next question, which of the following enhances or induces fusion of protoplast? Now this is regarding protoplast fusion. Okay, because normally in protoplast fusion, normal somatic cell cannot undergo fusion directly. So some fusogens are used here. Fusogens means what? These are the chemical reagent which can induce the cell for fusion. Okay, otherwise only gamete can fuse. Normal somatic cell cannot undergo fusion. So here what is the answer? What are those fusogen? So options are polyethylene glycol and sodium nitrate. Second one is indole acetic acid and kinetine. Third one indole acetic acid, gibberellin, and last one sodium chloride and potassium chloride. Now if we take this one properly, you can easily understand that it is a polyethylene glycol. It is short form as PEG. इसका कभी कभी इस तरीके से पेग करके शॉर्ट फॉर्म भी बोला जाता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. Besides, sodium nitrate is also there, which is used as a fusogen, which induce somatic cells to undergo fusion. Now, rest of the option, if you look at the second option, both of them are phytohormones. Okay, even third option, it is with the phytohormone. Last option, these are basically potassium chloride. They act in a poisonous manner. So all these three, B, C, D, they are not possible. Okay, next question. A technique of micropropagation is. Now options are, micropropagation की टेक्निक कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन है. So options are somatic embryogenesis, first one. Then second one protoplast fusion, third embryo rescue, and fourth one is somatic hybridization. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोप्रोपेगेशन क्या चीज़ है, ठीक है. क्योंकि बेसिकली प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है कि सीड है या फिर रूट है, स्टेम है, लीफ है, उससे पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करवाना, इसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन. लेकिन अब माइक्रो प्रोपेगेशन में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम इसमें यूज़ करेंगे ऐसा कुछ कि जो सेल्यूलर लेवल का है या फिर ऐसा विच इज़ नॉट विजिबल टू नेकेड आइज. ओके, सो ऑप्शंस को अगर देखते हैं ठीक से तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एम्ब्रियो रेस्क्यू एंड लास्ट वन इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पर एक बात समझनी होगी हमें कि माइक्रो प्रोपेगेशन जैसे ये टिश्यू कल्चर का हिस्सा है, राइट. तो उसमें हम क्या करते हैं कि सोमैटिक सेल लेकर के, देखो अभी एक चीज़ आपको समझनी होगी कि देखो एक सेकेंड, ठीक है. नॉर्मल एक सीड के अंदर क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट इन सीड. ओके, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है. एम्ब्रियो कैसा होता है इन द सेंस इट इज डिप्लॉयड, इजंट इट. तो अगर हमें सीड चाहिए तो ये एम्ब्रियो सीड के अंदर होना जरूरी है, एंड एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट, ठीक है. तो एम्ब्रियो किस चीज से डेवलप हो रहा है, जाइगोट, एंड जाइगोट इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है. तो हम अगर ऐसा कर दें कि जाइगोट की जगह हमें क्या करना है, किसी सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लगा देना है, ठीक है. तो सोमैटिक सेल से हमने क्या किया, न्यूक्लियस निकाल लिया. इट इज जस्ट लाइक एनिमल क्लोनिंग, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सोमैटिक सेल को हम एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट जाइगोट में, एंड जाइगोट देन वी आर कन्वर्टिंग इनटू एम्ब्रियो,
राइट। इन दिस वे आर्टिफिशियल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से हम जो बनाएंगे वो सीड कौन से रहेंगे? आर्टिफिशियल सीड्स रहेंगे। Okay, so these artificial seed they can be produced throughout the year, okay, without any limitation of the season. So this is the technique of micro propagation. Okay, अब जब दूसरे इसमें है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, अब ये कब करना पड़ेगा? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वगैरह ये समझना होगा आपको। देखो, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कब करना पड़ेगा? जब जो एग्जिस्टिंग हाइब्रिड्स है उनकी वेरिएबिलिटी खत्म हो चुकी है, मतलब जितनी वेरिएबिलिटी वो ला सकते थे वो ला चुके, अब और ज़्यादा वेरिएबिलिटी है नहीं उनमें। ठीक है, तब हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि दो अलग अलग स्पीसीज के सेल लेकर हमको क्या उनको फ्यूज करवाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि जितने एक स्पीसीज के वैरायटीज थे वो हम कर चुके, दो अलग अलग स्पीसीज का अगर ट्राई कर रहे तो वो नहीं हो रहा है। देन टू इंड्यूस द फ्यूजन ऑफ सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज, अगर दो अलग अलग स्पीशीज से अगर हम सेल लेकर के उनको फ्यूज करवाना चाहते हैं तो हमें फिर इसके लिए प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाना पड़ेगा। तो ये तो माइक्रो प्रोपेगेशन नहीं हुआ। ठीक है, एम्ब्रियो रेस्क्यू में क्या होता है, कई बार सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसके सराउंडिंग में कुछ पॉइजनस केमिकल हो सकते हैं जो उसको जर्मिनेट होने से रोकते हैं। तो हमें इस ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा कि उस सीड में से एम्ब्रियो अलग हटा करके उसे जर्मिनेट करवाना है, तो इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की एक ब्रॉड टर्म हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन का टेक्निक कौन सा बनता है? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट फ्रॉम अ डिसीज्ड वन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, which part or parts of the diseased plant will be taken? I think this one I have described somewhere else in previous chapter. इससे पहले किसी चैप्टर में ये आया था। सो आई हैव टोल्ड यू इवन देन, तभी मैंने आपको बोला था दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पर्टिकुलरली अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट में भी रूट अपाइकल और शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इसमें जो होता है the cells here in these part they are under the constant state of cell division, and so energy status of these cells is too much high and such cell remain unaffected, uninfected. ठीक है, तो इनको जो है वो वायरस का भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। तो एक पूरा का पूरा डिसीज प्लांट है लेकिन फिर भी उसका जो अपाइकल मेरिस्टेम रहेगा उसमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। सो अगर एक डिसीज प्लांट से हमको हेल्दी प्लांट बनाना है देन व्हाट वी हैव टू यूज? We have to use that apical meristem, isn't it? So option, it should be apical meristem only, isn't it? तो यहाँ पर अभी और एक सोचना होगा कि मेरिस्टेम तो मेरिस्टेम होता है, फिर चाहे वो अपाइकल हो या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम हो, isn't it? क्योंकि हमें क्या है कि वो जो सेल है वो सेल कांस्टेंट सेट ऑफ सेल डिवीजन में चाहिए, राइट? तो यहाँ पर एक्सिलरी मेरिस्टेम है तो वो भी चलेगा। क्या नहीं चलेगा यहाँ पे? पैलिसेड पैरेन्काइमा या फिर एपिडर्मिस ओनली, ये जो दिया ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। So any kind of meristem, if its cells are under constant state of cell division, then they remain free of any kind of infection. Okay, so right answer is here C. Next one, which of the following has maximum genetic diversity in India? तो इंडिया में सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन से प्लांट की है? राइस, मैंगो, व्हीट, ग्राउंडनट। तो कैसे डिसाइड करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी? तो ये बात आपको समझनी होगी दैट एनी plant whose number of varieties are huge one, that plant we can say it has maximum genetic diversity. ठीक है, in other terms I can say that it will be the origin place for that plant. जैसे मैंगो का नाम आपको पता है मैंजीफेरा इंडिका है, तो इंडिका ये वर्ड क्यों आया है? क्योंकि मैंगो का ओरिजिन इंडिया है। ठीक है, वैसे राइस में भी अगर ये चारों में कंपेयर करते हैं तो ज्यादा वैरायटीज किसके हैं? मैंगो के तो बहुत सारे, लेकिन उससे भी ज्यादा इन थाउजेंड्स राइस के वैरायटीज इंडिया में पाए जाते हैं। सो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ राइस इज फाउंड इन इंडिया। ओके, नॉट व्हीट, नॉट ग्राउंडनट और इवन नॉट मैंगो। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर टेक्निक कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पैरेंटल टिश्यू। बिल्कुल सही है कि टिश्यू कल्चर की टेक्निक में स्मॉल पैरेंटल टिश्यू जिसे हम एक्सप्लांट बोलते हैं, एक्सप्लांट लेकर के हम क्या कर सकते हैं? उससे इनफाइनाइट नंबर में, मतलब अनकाउंटेबल, चाहे n नंबर जिसे हम कहते हैं कई बार मैथमेटिक्स में, तो वैसे ही इनफाइनाइट नंबर में उससे प्लांट बना सकते हैं। द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्निक इज इन रेजिंग।
तो इस चीज़ का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कहाँ पर है? ऑप्शन पढ़ते हैं, वराइंट्स थ्रू picking up somaclonal variation. Second option, genetically uniform population identical to the original parent. Third option, homozygous diploid plant and development of new species. तो अभी फिर देखो इसमें कैसा पूछा है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक जो बहुत सारे प्लांट बना सकती है, तो ये जो उसका कैरेक्टर है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कहाँ पर है? अभी एक चीज़ हमें सोचनी होगी कि अगर हम वैसे तो सीड से भी ये ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि कई सारे वैरायटीज आने की वजह से एडल्ट्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, अनवांटेड अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है तो उसमें जो वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस होते जाती है, ठीक है। लेकिन टिश्यू कल्चर में जो अगर हम एक पेरेंटल टिश्यू ले रहे हैं और उसी से जो है फिर आर्टिफिशियल सीड जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई उसका यूज़ करके अगर हम एक टोटल पॉपुलेशन बिल्डअप कर रहे हैं तो वो कैसे रहेंगे? दे विल बी टोटली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पेरेंट। Okay, so right option it will be here, genetically uniform population identical to the original parent. Okay, अब बाकी के तीन ऑप्शन देखो, variants through picking up somaclonal variation, तो इसमें बेसिकली variants तैयार ही नहीं होने वाले, जो तैयार होंगे क्लोन ही तैयार होंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। homozygous diploid plant, ठीक है, अब यहाँ पर होमोजाइगस ही हो गए ये तो ठीक है, लेकिन डिप्लॉयड ही हो गए इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि कई सारे प्लांट ऐसे हैं कि जो नेचुरली डिप्लॉयड नहीं है, हेक्साप्लॉयड लक है, कई सारे प्लांट ऐसे हैं, तो यहाँ पर डिप्लॉयड कहना ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज, नो, नई स्पीशीज इसमें से तैयार नहीं हो सकती, सिर्फ हम जो स्पीशीज है उसका एक ओरिजिनल लॉट हम इस तरीके से पा सकते हैं, दैट्स इट। सो डी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सी इज ऑल्सो नॉट, ओनली बी इज द राइट थिंग। नेक्स्ट, which part would be most suitable for raising virus replant? Same kind of question, so need not to think over it, it is just meristem, nothing else. Next question, which one of the following is a case of wrong matching? तो यहाँ पर wrong match हमें ढूंढना है, कौन से ऑप्शन है इसमें? पहला कौन सा दिखता है इसमें? फर्स्ट है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल्स, ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में दो पूरी तरीके से अलग सेल का हम फ्यूजन करवाते हैं, तो सही पेयर है, रॉन्ग तो नहीं हो सकती है, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड कहता है वेक्टर डीएनए, साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस। वेक्टर डीएनए क्या होता है? वेक्टर डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं, आने वाला चैप्टर उसमें हम देखेंगे। वैसे अगर आपने जो अपना रिकैप सेशन एक बार देख लिया है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आपको पता होगा वेक्टर डीएनए क्या होता है। प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड जो हम यूज़ करते हैं, तो उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वी यूज इट to transfer the gene of interest or desired gene from donor to recipient or host cell. ओके, तो ये काम होता है वेक्टर डीएनए का, ना कि मतलब वो ये नहीं हो सकता कि वो टीआरएनए सिंथेसिस की साइट है। सो दिस इज द रॉन्ग पेयर बट राइट आंसर। माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में क्या कह रहा है? इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन लार्ज नंबर, अभी जो हमने डिस्कस किया था, तो ये भी सही पेयर है, हमें जो है गलत रॉन्ग पेयर चाहिए, ठीक है। कैलस अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल प्रोड्यूसिंग टिश्यू कल्चर, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अभी बोला, टिश्यू कल्चर में एक छोटा सा हिस्सा भी मिल जाए किसी प्लांट का, तो हम उसको एक्सप्लांट करके यूज़ कर सकते हैं, और फिर उससे जो बनाएंगे वो क्या होगा? कैलस कहलाएगा वो, ठीक है, जिसमें सेल का मास है लेकिन उसमें रूट, स्टेम, लीफ ऐसा कुछ भी मॉडिफिकेशन, डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। सो दैट अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following for statement A, for statement A to D and select the option which include all the correct one only. तो चार स्टेटमेंट दिए और इनमें से करेक्ट कौन से ये पूछा। सो एक के बाद एक रीड करते हैं। फर्स्ट वन, सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। तो स्पाइरुलिना जो जिसे सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर यूज़ किया जाता है, सो क्या कहा है उसमें? कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल, विटामिन। ओके, seems to true. सेकेंड क्या है? बॉडी वेट वाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस में बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर प्रोटीन देन द काउस पर डे। ये भी बिल्कुल सही है। शायद आपने वो कंपैरिजन पढ़ा होगा, 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस कैन प्रोड्यूस मोर देन 250 kg ऑफ प्रोटीन पर डे, whereas a cow weighing 250 kg will produce less than 250 grams of protein. So such a comparison is there. तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही मालूम होता है, पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लग रहा था। तीसरा क्या है? कॉमन बटन मशरूम आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये चीज़ हमें अब यहाँ पर समझनी होगी, क्या विटामिन सी ज़्यादा होता है मशरूम में?
नहीं, विटामिन डी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने गलत दी है, तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, या फिर इसको गलत बोल देते हैं। ये बी, सॉरी, विटामिन डी, तो ये भी गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। चौथा क्या है, राइस वैरायटी हैज़ बीन डेवलप्ड विच इज़ रिच इन कैल्शियम। तो ऐसा कोई राइस वैरायटी बनाया है? नहीं बनाया है, लेकिन वो कैल्शियम वाला नहीं है, रादर इट हैज़ गॉट आयरन, फेरस उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिर कौन से स्टेटमेंट सही हो रहे? 3 और 4, 1 3 4, 2 3 4, 1 2। सो लास्ट ऑप्शन इज फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी इनकरेक्ट माने फिर एक बार ठीक से लिखना पड़ेगा इन चीज़ों को, क्यों क्या पूछ रहे हैं वो, फॉल्स पूछ रहे हैं। इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल। ठीक है, तो इनब्रीडिंग कब चाहिए? जब हमें प्योर लाइन बनाने हैं। तो क्या हम इसे नकार सकते हैं? कैन वी डिनाई दिस? चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसमें क्या कह सकते हैं हम कि अगर इनब्रीडिंग करते हैं, मतलब सेम ब्रीड, उसी एक ही ब्रीड के मेल और फीमेल, क्लोजली रिलेटेड मेल फीमेल लेते हैं, तो क्या होगा? होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जो है प्योर लाइन डेवलप होती जाएगी। तो पहला इसे हमको क्या कहना पड़ेगा? ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन, यहाँ पर स्पेलिंग शायद करेक्शन करना पड़ेगा, दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इनब्रीडिंग हार्मफुल रिसेसिव जीन को सेलेक्ट करती है, ऐसा कहा गया है, दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो इनब्रीडिंग में होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, राइट। अब इसमें रिसेसिव जीन सेलेक्ट नहीं होते, रिजेक्ट होते, ये बात हमको समझनी होगी। इट डू नॉट सेलेक्ट मतलब ऐसा होगा कि वो आगे की जनरेशन में जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि इनब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? सेम ब्रीड इंटू सेम ब्रीड। सपोज फॉर एग्जांपल ए ब्रीड इंटू ए ब्रीड हमने कर लिया, हमें कुछ पॉपुलेशन मिली, सपोज 1000 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन मिली, तो हमने क्या किया? उसमें के 200 जो है उसे हटा दिया हमने, रिजेक्टेड। ठीक है, अब रिजेक्ट कर दिया मतलब क्या? इनमें हो सकता है कि स्मॉल आई कुछ ऐसे एलील थे जो रिसेसिव थे और जो प्रॉब्लमेटिक थे, तो एलिमिनेट हो जाते हैं, रिजेक्ट होते हैं, ना कि सेलेक्ट होते हैं। सो ये यहाँ पर गलत मालूम होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपेरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, ये चलेगा। अनडिजायरेबल जीन जैसे हमने बोला स्मॉल आई, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। और सपोज कुछ अच्छे वाले जीन है जैसे कैपिटल आई, तो ये अपने आप में क्या होते जा रहे हैं? सेलेक्ट होते जा रहे हैं। ओके, सो ये थर्ड ट्रू लगता है। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, सेम थिंग आई एम टेलिंग रिपीटेडली, तो ये भी ट्रू है। तो इसमें गलत कौन सा हो गया? फिर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हियर ऑनवर्ड्स एम्स क्वेश्चन यहाँ से चालू होते हैं, नंबरिंग फ्रेश शुरू हो रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एम्स फ्रॉम 2011, एसेंशियल ऑयल्स आर दोज विच। अब ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूज कर जाती है स्टूडेंट्स को। एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये चीज़ बहुत लोगों ने पढ़ी है, तो एसेंशियल का मतलब यहाँ पर क्या लेना है, खासकर जब ऑयल्स की बात आती है। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया है एसेंशियल, व्हाट इट मीन्स? It basically comes from essence. Okay, essence of a plant. मानो एक पर्टिकुलर प्लांट है, तो उससे हर एक प्लांट को अपना अपना एक एरोमा होता है, एक स्मेल होता है। ठीक है, तो उसे इसेंस भी कहा जाता है। तो ये इसेंस उस प्लांट को किन के वजह से मिल रहा है? सो दोज आर सम पर्टिकुलर एरोमेटिक लिक्विड थिंग्स और लिक्विड कंपाउंड्स, सो दे आर रेफर्ड एज एसेंशियल ऑयल्स। अब पढ़ते ऑप्शन, आर इसेंशियल टू द प्लांट इटसेल्फ। ऐसा है क्या वो प्लांट के लिए इसेंशियल है? नहीं, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आर यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट्स? नो। प्रोड्यूस परफ्यूम्स? लास्ट, आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के लिए इसेंशियल होना ये कोई बात मतलब नहीं होता है। दे आर यूज्ड एज अ टू प्रोड्यूस परफ्यूम, सो सी इज द राइट थिंग। इट इज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल एरोमा, स्पेशल इसेंस दे हैव गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट वाटर इज रिच इन। अब कोकोनट वाटर, अगर आपने टिश्यू कल्चर ठीक से पढ़ा है तो शायद आपको ये चीज़ें पता होगी कि कोकोनट वाटर माने कोकोनट मिल्क भी कहा जाता है, कोकोनट वाटर भी कहते हैं इसे। तो इसमें फाइटो हार्मोन्स होते हैं, इसलिए टिश्यू कल्चर में कई बार साइटोकाइनिन की रिप्लेसमेंट के तौर पर कोकोनट वाटर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, सपोज अगर देखो आपको पता होगा मॉर्फोजेनेसिस जिसे कहा जाता है। ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस में खासकर रूट और
स्टेम जब कैलस से हमें बनवाने हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो में बैलेंस करवाना पड़ता है। शायद पता होगा आपको ये ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो। ठीक है, अब अगर ऑक्सिन ज़्यादा रहते हैं साइटोकाइनिन से, देन क्या होता है, कैलस डिफ्रेंशिएट इनटू रूट। ओके, और अगर इसके उल्टी कंडीशन होती है, साइटोकाइनिन ज़्यादा होते हैं, देन कैलस डिफ्रेंशिएट इनटू शूट। ठीक है, तो हमें टिश्यू कल्चर में पहले तो क्या करवाना पड़ेगा, सेल डिवीजन इंड्यूस करवाना पड़ेगा। सो वी हैव टू प्रोवाइड साइटोकाइनिन एट दैट टाइम, मतलब हमने एक्सप्लांट लिया शुरुआत में। ठीक है, और एक्सप्लांट को हमें फिर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन देने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब इसका क्या बनेगा, मास ऑफ सेल, मतलब सपोज ये सिंगल सेल थी तो इसे क्या बनेगा, ये हार्मोन देने के बाद मास ऑफ सेल बनेगा। सो दिस मास ऑफ सेल इट इज कॉल्ड एज कैलस। इसे क्या बोला हमने, कैलस। ठीक है, अब इस कैलस से हमको क्या करवाना है, एक सीडलिंग बनवाना है कि जिसका कुछ हिस्सा ऊपर का जो है वो रूट की तरह है और नीचे का जो हिस्सा है वो नीचे का हिस्सा रूट की तरह और ऊपर का जो है शूट बन जाए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिन साइटोकाइनिन का प्रोपोर्शन बैलेंस करवाना होगा। तो इसलिए हमें टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन लगता है। अगर हमारे पास प्यूरिफाइड साइटोकाइनिन नहीं है, इन दैट केस वी कैन यूज दिस कोकोनट वाटर। सो साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर की कौन सी पेयर है, सो अजोला बीजीए। आई होप यू नो व्हाट इज दिस अजोला, इट इज एक्वेटिक फर्न। उसके लीफ में जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं विच कैन फिक्स नाइट्रोजन। ब्लू ग्रीन algae, you know it already, from kingdom Monera, they can also fix this atmospheric nitrogen. Then nostoc and legume, then rhizobium and grasses, salmonella and E. coli. तो E. coli और salmonella ये तो काम नहीं कर पाएंगे, rhizobium कर लेगा, लेकिन grasses ये कर पाएंगे क्या, नहीं, राइट। nostoc and legume, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर हम किन्हें कहते हैं कि जो नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल का इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, तो नॉस्टॉक ये काम मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा बचता है लेग्यूम। अब हर एक लेग्यूम में होना ज़रूरी नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको राइजोबियम वहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेचुरली ज़रूरी नहीं कि हर एक लेग्यूम के रूट में कंपलसरी वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो, राइट। लेग्यूम अगर हम लेते हैं तो हमें उस लेग्यूम के सीड को सीड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा राइजोबियम का। तो इसलिए सिर्फ लेग्यूम लिया और काम हो गया ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन अजोला और ब्लू ग्रीन algae दे देमसेल्व्स हैव दिस कैपेसिटी, दैट इज व्हाई ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Isadel is a new breed of sheep developed in Punjab by one of the breeding technique in which superior male of one breed is mated with superior female of another breed. Identify the breeding technique from the option given below. तो यहाँ पर Isadel की इंफॉर्मेशन है विच इज़ अ क्रॉस ब्रीड। ठीक है, तो इसमें क्रॉस ब्रीड है तो बस आंसर भी मिल गया हमें कि कौन सी टेक्निक यहाँ पर यूज़ की गई थी, बाय मीन्स यूजिंग टू डिफरेंट ब्रीड्स। Those I hope you know, it is Bikaner ewes and Merino rams. It is given there in NCERT in a very straightforward manner. So Bikaner ewes and Merino ram. So these are Bikaneri and Merino. These are two totally different breeds. Okay. Even ram, these are that is the what you can say female and male. Okay, like this. So it is a technique. It is very simple now. Answer is wide open. That is cross breeding. Okay. Next question. Explant is required to be disinfected before placing in culture. तो एक्सप्लांट अगर हमने लिया, जैसे किसी भी टिश्यू कल्चर का जो हम स्टार्ट कराते, शुरुआत करवाते, तो हमें शुरुआत में क्या चाहिए, अ पीस, स्मॉल पीस, इवन फ्यू मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, यूजुअली इट इज टेकन एज अ मेरिस्टेम, अदरवाइज एनी पार्ट कैन बी टेकन। मेरिस्टेम इसलिए लिया जाता है कि इट इज डिसीज फ्री, otherwise you can use any part provided it should be a living part, otherwise most of the plant part they have dead tissue, तो हमें ऐसा dead tissue नहीं लेना है, living लेना है। so we can use it as explant। ठीक है, अब हमें इसे क्या प्रोवाइड करवाना है, इसे जैसे मैंने अभी बताया हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करवाना है, राइट। सो एक्सप्लांट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसइंफेक्टेड। तो हमने इसे लिया और डायरेक्ट हार्मोन खिला दिया, ऐसा नहीं है।
अब हो सकता है कि इस एक्सप्लांट को, सपोज हमने लीफ का कोई टुकड़ा लिया है या फिर रूट का कोई हिस्सा लिया है या फिर स्टेम का कुछ लिया है, तो उसे अगर हमने डायरेक्ट से डाल दिया तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ फंगस हो, तो फंगस की ग्रोथ अननेसेसरी हो जाएगी। फंगस है या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो वो निकालने के लिए हमको उस एक्सप्लांट का डिसइंफेक्शन करना होगा। तो ये डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है? दिस इज डन बाय ऑटोक्लेविंग, यूवी रेज, क्लोरेक्स और हाइपोक्लोराइट एंड एक्स-रेज। So you need to understand autoclaving will kill that tissue. Autoclaving क्या चीज़ होती है? Just like a pressure cooker. ऑटोक्लेव करके एक इक्विपमेंट है, तो उसमें जस्ट प्रेशर कुकर की डिज़ाइन होती है। 15 पाउंड्स तक उसमें प्रेशर बनाया जा सकता है, राइट। सेम जस्ट लाइक कुकर उसका वर्किंग मैकेनिज्म है, सिर्फ अपने कुकिंग का जो कुकर है जो डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ किया जाता है, उसका जो प्रेशर का रेंज है वो कम होता है, 5 पाउंड्स तक होता है, ठीक है। लेकिन ये ऑटोक्लेव जो होता है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बेयर कर सकता है। सो अंडर हाई प्रेशर एंड दैट हाई टेम्परेचर, दैट वॉट एवर यूटेंसिल्स, लैब यूटेंसिल यूज इन टिश्यू कल्चर, दे आर डिसइंफेक्टेड, ठीक है। तो उनके डेथ होने की कोई चांस नहीं, एनीवे दे आर ग्लास मटेरियल, तो उनकी ऑटोक्लेविंग की जा सकती है। लिविंग की अगर हम इस तरीके से ऑटोक्लेविंग करेंगे तो वो डेथ हो जाएंगी। यूवी रेज भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है क्लोरेक्स और हाइपोक्लोराइट। क्या है क्लोरेक्स? ब्लीच कहते हैं इसे, ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरेक्स भी कहा जाता है, क्लोरॉक्स इट शुड बी बेसिकली, ये बेसिकली क्लोरॉक्स होना चाहिए। तो क्लोरॉक्स माने सोडियम हाइपोक्लोराइट या सिंपली हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है। सो इट इज़ फाइन, बट स्टिल वी हैव टू मेंटेन द प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। अगर थोड़ा भी इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इन दैट केस चांसेस आर दैट एक्सप्लांट विल डाई। ओके, एक्स-रेज दे आर ऑल्सो लीदल वन। एक्स-रेज भी म्यूटेशन इंड्यूस करवा सकते हैं। सो A, B and D they are not useful. With utmost care we can use this Clorox or hypochlorite. So C is the right answer. Next, which of the following is a viral disease of poultry breed? Now such thing you have to memorize, and I think these are the things, if they are not in your 12th NCERT, they are there in 9th or 10th standard NCERT. Okay, it is Ranikhet. Please remember this one. To obtain seedless watermelon, which among the following method is followed? अब हमें seedless watermelon बनवाना है, ठीक है। नॉर्मली वाटरमेलन में तो क्या होता है, सीड होते हैं, तो हमें एक ऐसा तरबूज बनवाना है कि जिसमें क्या है, सीड नहीं है, ठीक है। तो कौन सी मेथड इसमें यूज की जा सकती है? एपोमिक्सिस, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, माइक्रो प्रोपेगेशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी वेल। एपोमिक्सिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड तैयार होता है, तो दिल कर सकता है कि एपोमिक्सिस को ले लें। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा? इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जाइगोट जो है वो सोमेटिक सेल से बनवा रहे हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस, जो अभी मैंने बोला था, कैलस से रूट और स्टेम बनवाना, ठीक है, लेकिन उसको जो फल आएंगे उसमें तो बीज रहने वाले। माइक्रो प्रोपेगेशन, फिर वही चीज़ पर आ रहे हैं। सो देर इज ओनली वन मेथड विच कैन induce the formation of seedless fruit, and that is somatic hybridization. Why? Because we are using the nucleus of the somatic cell for growing that plant. Okay, so somatic hybridization can be the answer. Okay, apomixis is quite close. Apomixis भी काफ़ी close है. If we are inducing same thing, that is means what I can say, apo means without, mixis means mixing of gamete, that is fertilization. Avoiding fertilization it can be also done. So it is a bit confusing. ये थोड़ा सा confusing होता है. One can challenge this answer, somatic hybridization. Apomixis is equally well. Okay. Next question. In somatic hybridization of leaf and nucellar cells of pinus, the ploidy level is. अब देखो, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, मतलब ये कब करवाते हैं? जब नॉर्मली वो सेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये तब करवाना होता है, ठीक है। तो कौन से दो सेल लिए? एक लिया है लीफ का और दूसरा लिया है न्यूसेलस का। पाइनस की बात हो रही है, जिम्नोस्पर्म की, तो न्यूसेलस तो वैसे भी कैसे होता है, डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड सेल हो गया लीफ का और डिप्लॉयड सेल हो गया उसके न्यूसेलस का। अब इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो क्या बनेगा? टेट्राप्लॉइड नहीं बनेगा। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच एंजाइम विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम प्लांट सेल? ठीक है, तो अब हमें प्लांट सेल का प्रोटोप्लास्ट कल्चर करना है, ठीक है। टिश्यू कल्चर में डायरेक्टली सेल, प्लांट सेल को रखने से बेटर क्या रहेगा कि हमें उनका पहले सेल वॉल हटाना पड़ेगा। वॉट एवर लेफ्ट इनसाइड इट इज रेफर्ड टू एज प्रोटोप्लास्ट।
ठीक है, प्लांट सेल के हम प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, सेल वॉल हटाने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो अंदर का साइटोप्लाज्म बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो सेल वॉल हटाने के लिए, प्लांट सेल की सेल वॉल हटाने के लिए हमें कौन से एंजाइम लगेंगे, जाहिर सी बात है द कंपाउंड विच फॉर्म दिस सेल वॉल, दीज आर सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो सेल्यूलोज को डिग्रेड करवाने के लिए सेल्यूलेज और पेक्टिन को डिग्रेड करवाने के लिए पेक्टिनेज। सो वेरी ऑब्वियस आंसर, इट इज सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज। ये काइटिनेज फंगस के लिए यूजफुल पड़ सकता था। अब लाइपेज ऐसे लिपिड तो होते नहीं है, ठीक है, प्रोटीन भी उतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है कि उनको डिग्रेड करवाने के लिए एंजाइम यूज करना पड़े। सो सेलुलेज एंड पेक्टिनेज दे आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल। ओके, प्रोटीएज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकते हैं, लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकते हैं, राइट। काइटिन तो ये फंगल के सेल वॉल में होता है। सो दीज थ्री आर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोमैक्लोन प्लांट्स। तो सोमैक्लोनल जो मेथड है जिसमें डायरेक्टली सोमेटिक सेल को यूज करके उसके कॉपी क्लोन्स बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है, सोमेटिक हाइब्रिड, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज किया है क्लोन। अब क्लोन का मतलब क्या होता है, यस ऑब्वियसली इट इज सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, नीड नॉट टू थिंक एनीथिंग मोर। Here onwards some questions, some 7 questions are there based of this type, assertion reason. The first one, cattle breed can be improved by superovulation and embryo transplantation. तो कैटल ब्रीड जो होते हैं, कैटल माने गाय वगैरह जो है, तो उनका ब्रीड अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो एफएसएस लाइक एक्टिविटी ऐसे जिनके है वैसे हार्मोन इंजेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, सुपर ओव्यूलेशन होगा, जिसमें एक से ज़्यादा फीमेल गैमेट वो काऊ बना देगी, राइट। देन सर्जिकली दीज नॉन सर्जिकली बेसिकली दीज फीमेल गैमेट्स they are removed, okay, and then or before or that cow is artificially inseminated, then zygote they are removed and transferred to the another cows, another you can say surrogate mothers. So तो इस तरीके से ब्रीड की साइज इसमें इम्प्रूव की जा सकती है। Reason, superovulation in high milk yielding cow is induced by hormonal injection. So as I told you, superovulation hormonal injection के through होता है. So it is a proper explanation, right? Both things are correct. So I should say A is the right answer. Next, in case of vegetatively propagated crop, pure line selection is not required. अब देखो यहाँ पर ठीक से समझना होगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर बात आ रही है तो वहाँ पर इन केस ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप प्योर लाइन सिलेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो समझने वाली बात है कि अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है तो वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है क्या करने की, प्योर लाइन सिलेक्शन की, मतलब सेल्फिंग करना फिर सेलेक्ट करना, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है रूट स्टेम लीफ से तो वेरिएशन आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वेरिएशन कब आता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर सीड से प्रोपेगेशन हो रहा है तो। सो असर्शन इज फाइन। रीजन, हाइब्रिड विगर इज मोस्टली यूज्ड इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स। ठीक है, हाइब्रिड विगर इट इज मोस्टली यूज्ड इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट। हाइब्रिड विगर क्या होता है, सपोज अगर एक वेजिटेटिवली कोई वैरायटी है, ऐसे 2 वैरायटी है, दोनों अच्छे क्वालिटी वाले, लेकिन हमको दोनों के क्वालिटी इकट्ठा लाने और उनमें और कुछ इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सपोज 2 वैरायटी है तो हमने 2 वैरायटी का क्रॉस कर दिया, से वैरायटी ए और वैरायटी बी, इनका क्रॉस कर दिया, तो हमें सपोज जो भी वैरायटी मिलती है, से एक्स नाम की हमने वैरायटी इसमें से पाली। तो एक्स वैरायटी में क्या रहेगा कि ए के जो क्वालिटीज़ है वो ए से भी बेटर है और बी के जो क्वालिटी है वो बी से भी कैसे है, बेटर है। तो ये जो बेटरमेंट है ऑफ एक्स ओवर आइदर ऑफ द पेरेंट, दिस बेटरमेंट of this progeny over both of the parent, this is called as hybrid vigor, right? इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड विगर कहते हैं। अगर देखो सेल्फिंग में मैंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में बताया था, अगर अलग अलग वैरायटी का क्रॉस कर रहे हैं तो हमें एडवांटेज मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन अगर सेम सेल्फिंग एक ही ब्रीड में अगर करवा रहे तो डिप्रेशन मिलता है, कैरेक्टर की लेवल क्वालिटी जो है कम होती जाती है। तो हाइब्रिड विगर हमें मिल गया। अब इमेजिन करो कि अगर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो क्या हो जाएगा,
सपोज हमने एक्स वैरायटी पाली, अब हमने क्या किया, एक्स इंटू एक्स इस तरीके से अगर करते रहे, एक ये चांस है, और दूसरा हमने एक्स इंटू वाई इस तरीके से और एक नेक्स्ट जनरेशन किया, तो ये जो हाइब्रिड वीगर आया था वो जिस तरीके से एज अ वेरिएशन आया है वो यहाँ पर डिसअपियर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्स इंटू एक्स भी कर रहे तो भी यहाँ पर ये डिसअपियर होगा। लेकिन ऐसा सोचो कि ये वैरायटी जो है इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, मतलब इसे ग्रो करवाने के लिए हम रूट स्टेम लीफ यूज करते हैं, रूट स्टेम या लीफ। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? नहीं, दिस इज प्योरली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर जो हाइब्रिड विगर बना है ये हाइब्रिड विगर कंटिन्यूअसली मेंटेन होगा। ओके, दैट इज व्हाई हाइब्रिड विगर इज मोस्टली यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फाइन। लेकिन क्या ये पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है? नहीं, बोथ ऑफ द थिंग्स, एज आई यूज मेनी टाइम दिस टर्म, सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज। So answer should be B. Fine. Next one. Yeast such as Saccharomyces cerevisiae are used in baking industry. We know this one very well, isn't it? Saccharomyces cerevisiae, yeast, baker's yeast, brewer's yeast ऐसा बोला जाता है इसे. Reason: carbon dioxide produced during fermentation causes bread duff to rise by thermal expansion. It is true. ठीक है, जो ब्रेड का जो डफ होता है उसमें जब ये सैक्रोमाइसिस सेरेवियाई ऐड किया जाता है तो दूसरे जो है वो बिल्कुल पफी बन जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है। तो ये ऐसा एक्सपेंशन क्यों हुआ? इट इज़ थर्मल एक्सपेंशन एक, और दूसरा जो CO2 है वो बबल आउट हो रहा है, तो उसके वजह से ये पूरा थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। सो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, राइट, बोथ ऑफ द थिंग्स आर फाइन, सो आंसर मस्ट बी ए। नाउ अ मेजर एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ये टिश्यू कल्चर का मेजर एडवांटेज है, ऐसा कहा गया है। क्या कह सकते हैं? मेजर एडवांटेज अगर कहते हैं तो ठीक है, चलेगा, उसी का हिस्सा है टिश्यू कल्चर का। रीजन: हाइब्रिड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू प्लांट। तो ये जो हाइब्रिड है बेसिकली, ऐसे हाइब्रिड को हम हाइब्रिड नहीं, क्या कहते हैं हम इसे, सोमेटिक सेल को अगर हम इस तरीके से फ्यूज करवा रहे तो इनको हाइब्रिड नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं, साइब्रिड कहते हैं। वैसे हाइब्रिड कहना गलत नहीं है, साइब्रिड अप्लाइड टर्म है, तो ये पूरी तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता। हाइब्रिड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू प्लांट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेकेड प्रोटोप्लास्ट अगर वैसे फ्यूजन नहीं हो रहा है तो उनके सेल वॉल हटा करके हम उनको फ्यूज करवा देते हैं, राइट। तो दोनों चीज़ें फिर एक बार सही है, लेकिन दूसरे का एक्सप्लेनेशन का कोई चीज़ यहाँ पर नहीं दिखता है। ओके, तो सेम थिंग डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सो अगेन आई हैव टू से आंसर मस्ट बी बी। Assertion: the behavior of the honey bee to come out of the hive in large number is called as swarming. ठीक है, तो हनी बी जो होते हैं वो अगर बड़ी संख्या में उनके छत्ते से बाहर आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, उसके स्वार्मिंग कहते हैं। बेसिकली उनका जो एक ग्रुप एट ए टाइम छत्ते में से बाहर निकलता है उसे स्वार्म कहा जाता है, स्वार्म। और इस तरीके से बाहर निकलना उसे हम कहते हैं स्वार्मिंग। रीजन: इट रिलीव्स द क्राउडिंग एंड प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ फाउंडिंग न्यू कॉलोनीज। ऐसा करने से वो जो छत्ते में बहुत क्राउडिंग से क्राउडेडली बैठे हैं उनमें क्या हो जाएगा, उनकी क्राउडिंग से वो उनका छुटकारा पा लेंगे वो। और दूसरी चीज़, वो नई कॉलोनी भी ऐसे इसमें बना सकते हैं। अगर उनको ओरिजिनल कॉलोनी में अगर कुछ दिक्कत है तो वो पूरा एक नया छत्ता भी डेवलप कर सकते हैं। तो क्या कहोगे अभी, बिहेवियर ऑफ हनी बी टू कम आउट ऑफ द हाइव लार्ज नंबर, इट इज़ कॉल्ड एज स्वार्मिंग। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही लग रहा है, और इसे स्वार्मिंग कहने का रीज़न हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो न्यू कॉलोनीज माने स्वार्म, नई कॉलोनी माने क्या, स्वार्म वो बना सकते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फाइन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एज वेल, सो आंसर मस्ट बी ए। लास्ट बट वन क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन: सोनालिका एंड कल्याण सोना आर हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट। व्हीट के दोनों जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज है। ओके, अच्छी बात है, सही बात भी है। रीजन: दे आर डेवलप्ड बाय IARI, यस, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, दे हैव डेवलप्ड देम। लेकिन उनका ऐसा उसमें नाम होना या फिर वो गेहूं के होना, ऐसा उसमें कुछ रीज़न है क्या? नहीं। सो एज यूजुअल बोथ थिंग आर फाइन, सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज, एंड मस्ट बी बी। एंड लास्ट assertion रीजन: it is IR8 variety of the rice developed in International Rice Research Institute इन फिलीपाइंस। ठीक है, तो क्या कहा है कि IR8 वैरायटी जो है राइस की वो कहाँ पर बनी है, IRRI, दैट इज इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपाइंस में।
बिल्कुल सही है, ट्रू वन. जया एंड रत्ना डेवलप इन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. नो, दिस इज रॉन्ग. ये फिलीपाइंस में नहीं. जया रत्ना अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था, दे आर डेवलप इन इंडिया. ओके, सो दिस इज फॉल्स. तो ऐसे जब आती है कि असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, आंसर इज सी. ओके, सो विद दिस क्वेश्चन वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन, राइट. तो आज का सेशन में थोड़ा सा देर हुआ. यू माइट हैव गॉट दिस एट 3 PM, बट ड्यू टू सर्टन प्रॉब्लम, मतलब जैसे मैंने आज सवेरे आप सबको गुड मॉर्निंग कहा था, तब लिटरली मॉर्निंग ही थी मेरे लिए. तो अचानक से पावर कट होने की वजह से वो जो है वो आधा रह गया, एंड देन आई हैव टू शूट दिस रेस्ट ऑफ सेकेंड हाफ आफ्टरवर्ड्स. सो अभी तो शाम होने को आई है. वॉट एवर, अभी आपके पास 70 डेज बचे हैं, 70 मोर डेज, 70 दिन. तो पहले तो हम अपना ये PYQ सेशन वाइंड अप कर लेते हैं और कुछ 6-7 एपिसोड बन जाएंगे, राइट. आई थिंक 7 चैप्टर्स मोर लेफ्ट. So after that we'll have new plans. So already I told you, you can say whatever you want to in comment section. Okay, तो ये आप comment section में आप डाल सकते हो, so that I can get some more innovative ideas, so that I can make you work properly. Because जो फ्रेशर है उनके लिए एक रिपीटर के बराबर का चांस आया है, और जो रिपीटर है उनके लिए दूसरे रिपीट का चांस आया है, ऐसे मैं कह सकता हूँ. ओके, यहाँ पर जो लोग हिम्मत हार जाएंगे उनका कुछ नहीं हो सकता. एक बात बहुत अच्छे से याद रखो, हिम्मत की कीमत है. दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड लॉन्ग बैक. कुछ 10-15 साल पहले किसी ने मुझे कहा था ये. तो जिसके पास हिम्मत है उसी की कीमत है, दुनिया में यही है. तो बहुत अच्छे से अपने आप को संभाले रखना है. देखो, अगर बाहर नहीं निकल रहे हो घर से तो बिल्कुल कोरोना का तो डर नहीं है, लेकिन दिमाग भी चुस्त होना बहुत ज़रूरी है. डिप्रेशन, ये वाली चीज़ें, ये ऐसे बहुत इसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट, फेवरेबल टाइम चल रहा है. मतलब अभी तक 2 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है. एक बार 3 मई से हमें अभी जून में बताया था, उससे आगे चल के अभी जुलाई में आए हैं. तो ये इस तरीके से अभी सितंबर को बोला है. तो हो सकता है जो लोग बहुत शुरुआत से अच्छा पढ़ रहे हैं उनको ये डिप्रेशन में, या फिर कुछ डिप्रेशन भी ना कहूँ, लेकिन एक बेकार से माइंडसेट में चले जा सकते हैं. सो एज आई टोल्ड यू, यू कैन कॉल मी सम टाइम. आई मे नॉट अटेंड योर कॉल, बट इट डजंट मीन कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके कॉल नहीं अटेंड करूँगा. आई विल श्योरली अटेंड योर कॉल. ओके, प्लीज़ कॉल मी रिपीटेडली. मतलब अगर मैं नहीं अटेंड करता हूँ तो आधे घंटे बाद फिर से कॉल कर देना. कुछ अगर बिजी रहता हूँ, इन दैट केस ओनली आई अवॉइड कॉल. ओके, सो आई एम ऑलवेज विथ यू, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स. सो with this note, let us wind up this one. Tomorrow we'll meet, and here onwards, as I told you in the morning as well, morning in the sense in the earlier part of this session itself, कि यहाँ से अभी पूरे जो है रिकॉर्डिंग ही आपको देखने पड़ेंगे. ऐसे भी कुछ इंटरेक्टिव तो बचा नहीं है, हर एक क्वेश्चन मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो आप लोगों को मुझे अगर पर्सनली टच में रहना है, देन व्हाट्सएप एंड कॉलिंग इज़ द बेटर मेथड. ओके, so with this note, wind up this session. Thank you very much.